method as well. Accounting rate of return. Net present value, I have explained you. Here it is not given, one method is more there, that is in the modern method, that is the discounted payback period, but I have given in the description. Okay, so total 2 traditional method and 3 are the 4 methods are in the modern techniques. जितने भी modern techniques method हैं, they take into account our time value of money. That is the basic difference. Okay, so net present value, I have already explained you about that. Now you need to remember one thing very, very clearly. I'm telling you that may be the case, they may give you, okay, this is the profitability index of one A unit and this is of the B unit, then you tell which is more which is beneficial. So interpretation of each and every method, either it is a profitability index, either it is a net present value method, or either it is a discounted payback period, तो सभी का आपको जो आपका एनालिसिस है जो हम करते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आप सभी मेथड्स की अच्छे से करोगे. इट इज नॉट लाइक अ टिपिकल मेथड like a numerical will be asked. They may give you a answer and they may ask you interpret it. Okay, this is the question they may ask you in an MCQ. Okay, these are the two A and B, this is a profitability index of A and this is B, which one will you prefer? So you need to remember the interpretation. On the basis of that only you are going to give the answer. Okay, so every one of you, all the methods, remember the interpretations. For this time I'm telling you very clearly, interpretation is very important, because in the MCQ most of the time the interpretation is being asked. Then coming out to the next, that is a profitability index. Here what we do, we calculate the ratio of the present value of cash inflow. जितने भी हमारे cash inflow होंगे उस पे हम एक PV factor लगाते हैं. Once I start with the numerical, then you will understand. And the required rate of return. Okay, and on the basis of that we calculate the profitability index. So what is the formula for profitability index? It's simple: present value of cash inflow divided by the present value of cash outflow. So the merits of this method are, it takes into account all the modern methods, whichever is given. They take into account the time value of money, and they are being accepted, or you can say rejected, on the basis of the value of index. If it is greater, it is accepted, or if it is less, then it is accepted. So you need to remember it. It is useful to rank the proposals. Suppose two proposals are given, A or B, then you can rank them. This is beneficial and this is not beneficial. It also takes into account the entire stream of cash flow, because all the, in this method we take into account all the cash inflow which is being there generated during the life of any asset. So that is the main merits. So the difficulty here is lies, like it is difficult to compute because it requires huge calculations. Okay, the calculation part is greater in the modern techniques because they take into account the present value. So obviously the, you can say the calculation aspect is a bit greater in these modern techniques. Then when we accept the profitability index, if the profitability index is greater or equal to 1, then we accept it. But if the project should be accepted, otherwise reject. Okay, अगर वो 1 है या 1 से ज्यादा है तो हम उसको accept करते हैं, अगर उससे कम है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं. और अगर आपको 2 PI फैक्टर दिए हैं बेटा, A और B, जिसका ज्यादा है वो बेनिफिशियल है. ठीक है, so you need to remember the interpretation part. Then coming on to the IRR method, so internal rate of this return method is adjusted technique and cover the discount of the traditional. So it is basically the method which is being adopted because the traditional method has many downfalls, or you can say many limitations. That is why this internal rate of return method is taken into account. So here the simple thing is cash inflow divided by the investment, that is initial investment. So internal rate of return, if I tell you, it's a trial and hit method. Okay, trial and error method है. हम assume करते हैं this may be the interest rate, this may be the rate, and accordingly we calculate it. It is basically a trial method. So very rarely a numerical is being asked on this, but still I'll cover so that I don't want to take any risk. Then is the
Discounted payback period method, the discounted payback method, it is defined the number of years which are being required in the initial cash outlay. See, it जो हमने payback period traditional method में किया था, ये उसी का improved version है. Here we take into account the cash value of the money. That is why we take into the time value of money. उसमें हम time value नहीं लेते, calculation almost same रहता. I'll explain you how. I think sir has shared one PDF with you, all of you in the group. Yes, ma'am. Okay, so we will start the numerical. Okay, starting with the first numerical, just give me a second. I'll start with my whiteboard. So the first numerical that is there is the payback period method. Okay. Payback period method. This is ट्रेडिशनल मेथड में बेटा नॉर्मली आपको यही क्वेश्चन आता है, पेबैक पीरियड मेथड. जस्ट अ सेकंड. ओके, पेबैक पीरियड. इसमें देखो, अगर आप क्वेश्चन देखते हो, फर्स्ट ही पेज है बेटा जो, उसमें क्या दिया है, पेबैक पीरियड के नीचे देखो क्या दिया है. इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रपोजल इज 20 लाख एंड द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पर ईयर आर 4 लाख. समझ में आया बेटा आपको? जो मैं पढ़ रही हूँ वो दिखा ना आपको? Is it clear? I mean what I am reading? Oh, yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा. इसमें क्या है, जब भी हमारा कैश इनफ्लो जो आपको दिया हुआ है, देखो इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कैश इनफ्लो के साथ आप डिवाइड कर सकते हो, और जो वो फिगर आएगी वो फुल आ रही है. दैट इज, देखो अभी क्या है, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, सॉरी, ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा कितना है, 20 लाख. ठीक है, और हमारा कितना दिया हुआ कैश इनफ्लो कितना है, 4 लाख. ठीक है, डिवाइड किया कितना आ गया, दिस इज 5 इयर्स, जो हमारा पे बैक पीरियड है. समझ में आया? क्या किया आपने, जितना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको डिवाइड कर दिया इनफ्लो से. बट इस केस में कैसे है बेटा, ये डिविजिबल है. ठीक है ना, तो आपके पास फुल फिगर आ गई. अगर वो नहीं होता तो हम कैसे करेंगे, सिंपल वाला ये आपको कभी आएगा नहीं. आपको कैसा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ. अभी आप क्वेश्चन देखिए. What is given is they have given you the initial investment. कितना दिया है उस क्वेश्चन में बेटा, जो एक टैबुलर फॉर्म दिया है उसी पेज पे देखो क्या दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें, 50 लाख दिया है. 50 लाख, yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो उसमें आपको बेटा ऐसे ईयर वाइज ना अमाउंट दिया होगा. देखो फर्स्ट ईयर के आगे लिखा है 12 लाख, सेकंड के आगे दिया है 19 लाख, थर्ड के आगे लिखा है 25 लाख, फोर्थ के आगे लिखा है 27 लाख, एंड फिफ्थ के आगे कितना लिखा है, 26 लाख. ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा. उसके आगे जो हमने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है वो खुद कैलकुलेट किया है. अभी कैसे, फर्स्ट है 12 लाख. ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे कर लेंगे, पहले साल का तो 12 लाख ही हुआ ना बेटा, सेकेंड ईयर का कितना हुआ, कितना है, 19 लाख. ठीक है, तो अभी क्या करोगे, 12 लाख प्लस 19 लाख कितना हो गया, हुआ 31 लाख. समझ में आया? No, ma'am. बेटा क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, आ गया ना आपका फिगर. फर्स्ट में तो फर्स्ट का ही आएगा, फिर क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, आ गया ये फिगर. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, एक सेकंड बेटा फिर से बताती हूँ. देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, दिस इज 12 लाख, दिस इज 19 लाख, दिस इज 25 लाख, 27 लाख, एंड हियर इट इज 26 लाख. क्लियर? अभी हमें करना है क्यूमुलेटिव कैश इन. कितना है आपका, फर्स्ट ईयर का कितना है, एज इट इज आएगा 12 लाख. आ गया. नाउ व्हाट यू विल डू इज 12 प्लस 19 कितना आ गया बेटा, आया 31 लाख. Yes, ma'am. ठीक है, अभी आगे कैसे करेंगे, 31 प्लस 25 कितना आया, 56.
ठीक है, अभी देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना दिया है, 50 लाख दिया है. Yes, ma'am. That means it is greater than 2 but less than 3. समझ में आया? 31 से तो ज्यादा है, 56 से कम है. That means जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 2 और 3 इयर्स के बीच में है, तो 2 इयर्स तो कंप्लीट है. It is 2. Okay. Now how much amount is left after 31 lakh? 50 में से बेटा 31 लाख आप माइनस करोगे. 19. Yes, that is 19 lakh. ओके, नाउ थर्ड ईयर में आपका इनफ्लो कितना था? क्यूमुलेटिव इनफ्लो कभी भी मत देखना, क्वेश्चन गलत होगा. इनफ्लो कितना था? 25 लाख. समझ में आया? Yes, ma'am. ये इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. I mean, I didn't ask you to solve anything, but still a yes or no you people can ask, tell me. Okay, fine. This is the way we will do the profitability in payback period method. ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया. अभी पेबैक पीरियड में बेटा याद रखना, आपको उसी पेज पे मैं बता देती हूँ. अगर आपको दो प्रपोजल दिए हैं X और Y, तो आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे? द वन विद लेस पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड जितना कम होता है उतना अच्छा होता है. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, This is the interpretation. Now I'll start with the next numerical. इसमें भी बेटा हम वही पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे. देखो प्रपोजल एक्स में देखो क्या दिया है आपको कैलकुलेशन में. आई थिंक इट इज द सेम क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व्ड. ओके, तो इसको हम नहीं करेंगे अभी. देखो इसमें प्रपोजल एक्स दिया है. ओके, प्रपोजल एक्स का कैलकुलेशन एंड प्रपोजल वाई का कैलकुलेशन मैं दोनों का करके दिखा देती हूँ बेटा. सॉरी, okay, for this proposal X, what is the value? 12 lakh, 19 lakh, 25 lakh, and here 27, and here is the 26 lakh. तो cumulative cash inflow first में कितना आ गया? 12. Second में कितना आ गया? 31. Then is 56, then 83, then clear? अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 50 लाख. ठीक है, दैट मीन यहाँ पे लाई करता है वो. ठीक है, सेम वे जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था 2 इयर्स फुल. अभी कितना पेंडिंग रह गया? 19 लाख. इनफ्लो कितना है? 25 लाख. दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ पीआई फैक्टर. ओके, ये आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा. अभी इसी में सेकंड में देखो, उसमें भी प्रपोजल वाई में कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, वो अभी हम चेक करते हैं. 10 लाख, 15 लाख, 24 लाख, 35 लाख. ओके, सो कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 50. सो फर्स्ट इज 10. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करोगे ना अभी आप. देन सेकंड इज 25. इट इज 49. Here it is 84. So 50 greater than this, less than this, isn't it? 49 से तो ज्यादा है, इससे कम है, तो मतलब 3 इयर्स तो कंप्लीट है. 3. अभी कितना रह गया? 49 कंप्लीट आपका मिल गया. कितना रह गया? 1 लाख ही बचा. Yes, ma'am. और कितना इन्वेस्टमेंट है बेटा? 35 लाख है. Yes, ma'am. ठीक है, अभी इसका पेबैक पीरियड आ गया. ठीक है, अभी देखो एक्स का पेबैक पीरियड है 2.76. वाई का पेबैक पीरियड आया 3.028. अभी हम कौन सा प्रेफर करेंगे? टेल मी. X. यस, ठीक है, वी विल प्रेफर एक्स. The one with the lesser payback period is always given preference. Okay.
समझ Yes, में आ ma'am. गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अभी हम करेंगे नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसमें कैसे करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, here the initial investment what is given is 20 lakh rupees. Effective life is 5 years and amount is given to you. Average rate of return का बेटा फॉर्मूला क्या रहता है? Average profit divided by average investment. ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? I'll tell you, average investment is opening investment, सॉरी या आप बोल सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो एंड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में मैं करके दिखाती हूँ। देखो उसने आपको क्या दिया है, प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना दिया है? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है तो कितना दिया है आपको? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका दिया है, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करके बेटा कितना आ रहा है? 32 लाख। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है ना हमारा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 5। सो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 6,40,000। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what you have to do is you have to calculate the average investment. What is the average investment now? Average investment you can see is initial investment कितना दिया है बेटा? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट तो आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो वो नहीं है आपके पास। डिवाइडेड बाय 2, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 10 लाख आ गया बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट आया 6,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में बेटा अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड, जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है अगर उससे ज्यादा होता है तो इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि जितना हमारा ARR ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अगर 2 प्रोजेक्ट दिए हैं जिसका ARR ज्यादा होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25 लाख, ये वाला क्वेश्चन है क्या बेटा? है क्या ये वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब यही वाला है ना अभी नेक्स्ट। ठीक है, Yes, ma'am. अभी एक क्वेश्चन ये बेटा ध्यान से सुनना, आपको मैं अभी बता देती हूँ। आपको क्लियर कट क्वेश्चन आता है या तो पीवी फैक्टर का, आपको आता है पेबैक पीरियड का, या आपको आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, या आपको क्वेश्चन आता है इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे बहुत ही रेयर होता है कि कभी क्वेश्चन आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, वैसे उसका क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज मैंने बताया ना वो ट्रायल एंड हिट मेथड पे ही चलता है। ओके, नाउ सॉरी, ओके, अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देती हूँ बेटा। X Limited is considering a proposal of investment in 25 लाख रुपीस। ठीक है, अभी आप कैसे करोगे इसका? अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीस, सेकेंड में कितनी है
7 लाख, फिर कितनी है 9,50,000, ठीक है, फिर है 10 लाख, उसके बाद है 11 लाख। बेटा ये एक हम पीवी फैक्टर है, देखो उसी क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपनी यूजेस 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, वो मतलब आपने उस पे आपका पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये तो आपको आता होगा, 10% डिस्काउंट पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.909, 0.826, ठीक है, 0.751, 0.683, ये तो आता है ना कैलकुलेशन, Yes, ma'am. ठीक है। और अगर नहीं भी आता ना, फर्स्ट 5 क्रैम कर लो, सेम ही रहेगा, 10% आया तो सेम रहता है टेबल, ठीक है, सिंपल है। 0.909 के बाद 826, 751, 683, 621, जस्ट क्रैम इट। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं है तो क्रैम कर लो, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करनी है, ये आपका कैश इनफ्लो था। अभी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके। फर्स्ट में आ गया 4,54,500, ठीक है। नेक्स्ट में कितना है 5,78,200, सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सभी का मल्टीप्लिकेशन आप ले लोगे यहाँ पे। देन जो एडिशन आया, इसमें एडिशन कितना है 31,12,250, दिस इज योर टोटल प्रेजेंट ऑफ कैश इनफ्लो। इन सबका जितना मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐड करेंगे बेटा, वो हो गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैश इनफ्लो का। अभी आपने इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 25 लाख था ना, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. कितना आ गया आपका, आ गया 6,12,000। तो अभी आप इसमें देखो, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। अभी इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन फिर से लेती हूँ, उसमें सब तरह के आएंगे, जस्ट अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 12 लाख रुपीज, ये क्वेश्चन है ना बेटा अभी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के लिए देखो बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अभी कितना है 3 लाख, 3 लाख, 4,50,000, देन इज 4,50,000, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी फिर कितना है 7,50,000, ठीक है। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये कैश इनफ्लो हो गया। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो Yes, ma'am. 3 लाख, Yes, ma'am. ये कितना हो गया 6 लाख, ये कितना हो गया 10,50,000, ये कितना हो गया बेटा 15 लाख, ये कितना हो गया 22,50,000, क्लियर। अभी आप देखो बेटा, आपका इनिशियल कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है प्रोजेक्ट में 12 लाख, ठीक है। अभी मुझे कौन बताएगा ये कहाँ पे लाई करेगा, टेल मी, 12 लाख कहाँ पे लाई करेगा बेटा, ये तो छोटा सा बच्चा भी मुझे बता देगा, 12 लाख किसके कहाँ पे आएगा, Third and fourth के बीच. Ma'am, third and fourth के बीच. यस यस यस, ठीक है, क्योंकि 10,50,000 से ज्यादा है, इससे कम है, तो 3 इयर्स तो कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। अभी 10,50,000 को हम माइनस करेंगे 12 में से, तो कितने बच गए 1,50,000 बच गया बेटा हमारा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी इनफ्लो कितना है यहाँ पे 4,50,000, 85. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पे बैक पीरियड, क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वे, ईयर्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट कितना है, पहले का 3 लाख है, फिर सेम वे से 3 लाख, 3 लाख,
4,50,000. Okay, then is 4,50,000. Then here is 7,50,000. अभी यहाँ पे पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है. 10% पे ही करना है. क्या हो गया? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. क्लियर? अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. इसको 3 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा. इसको इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी. अभी आपको क्या करना है, जब इन सब की वैल्यू आ गई तो इन सब का टोटल लेना है. व्हाट इज इट? 16,31,550 रुपीज. ठीक है, ये आ गया. अभी आपका फॉर्मूला क्या था नेट प्रेजेंट वैल्यू का बेटा? इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इनफ्लो कितना आ गया बेटा हमारे पास? इतना. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था ना 12 लाख रुपीज. 12. Yes. तो अभी कितना आ गया? 4,31,550 आ गया. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अभी देखो, अभी हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अभी ये ध्यान से सुनना, जस्ट अ सेकेंड. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं. इसमें सेम रहता है, उसको उससे डिवाइड करते हैं. जो हमारी कैश इनफ्लो की वैल्यू आई ना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से. समझ में आ गया? Yes, ma'am. अभी इसकी वैल्यू आती है 1.359. बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. समझ में आ गया? Yes, ma'am. अभी है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में भी हमें क्या दिया है उसने? पे बैक पीरियड पे मेथड पे कितना डिस्काउंट दिया है? 10%. सेम वे से कैलकुलेट करोगे आप कैश इनफ्लोस, जैसे हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू में किया था. उसके बाद अगर आप देखो बेटा प्रेजेंट नेट प्रेजेंट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में, उसमें फिर हमने क्या किया? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए. ठीक है, अभी प्रेजेंट वैल्यू से अच्छी करके कैसे दिखाऊंगे, अच्छी थोड़ा वो हो रहा है. लेट मी ब्रीफ यू. ओके, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे लिया बेटा. हमारा जो अमाउंट था 3 लाख, 3 लाख, 4,50,000. ठीक है, ऐसे हम फोर्थ और फिफ्थ ईयर का लेंगे. अभी पीवी फैक्टर हमने कैलकुलेट किए थे ना पहले. ठीक है, Yes, ma'am. उसको फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा कैश इनफ्लो आ गया था. जैसे अभी पहले का आया 2,72,700. ठीक है, फिर आया 2,47,800. ठीक है, ये हमारे कैश इनफ्लोज आ गए. अभी हमें क्या करना है? जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएंगे, जैसे अभी आ गया 2,72,700. फिर सेकंड आया 2,47,800. थर्ड कितना आया बेटा? 3,37,950. ठीक है, अभी हम निकालेंगे सेम वे से क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. पहले का तो कितना आ गया? सेम आ गया. अभी Yes, सेकंड कितना आया? इन दोनों का ऐड कर लेंगे. ठीक है, फिर इसको ऐड करेंगे जैसे हमने सबसे पहले फॉर्मूला में किया था ना बेटा. मैंने आपको बोला ना, ये उसी का वर्जन है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हमने पहले किया था, उसी का पेबैक पीरियड का ही ये इम्प्रूव्ड वर्जन है. हम इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं, उसमें हमने कंसीडर नहीं किया था. ठीक है, अभी क्या आ गया आपका? ये आपकी वैल्यू आ गई. अभी इसमें क्या था आपको दिया हुआ? कैश इनफ्लो की वैल्यू आ गई आपकी. अभी इसमें कितना दिया है? कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? इनिशियल बेटा कितना दिया हुआ है? 12 लाख दिया हुआ है. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, तो दैट मींस इट लाइज बिटवीन फोर्थ एंड द फिफ्थ ईयर.
Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो अभी अभी 4th ईयर में आपका फुल आ गया। 5th ईयर में कितना आ गया बेटा? 12 लाख माइनस 11,65,000, उसको माइनस करोगे तो कितना और चाहिए हमें? 34,200, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू जो दी है कैश इनफ्लो की, 4th ईयर की नहीं 5th ईयर की, वो आप लिखोगे, दैट इज 4,65,750। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, जब भी बेटा नीचे वैल्यू लिखोगे याद रखना क्यूमुलेटिव मत लिख लेना, प्रेजेंट वो इनफ्लो लेना है जो इनिशियल नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, क्यूमुलेटिव मत ले लेना, सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि Yes, हमने ma'am. लिखा होगा, क्योंकि ऊपर हम वो लेते हैं क्यूमुलेटिव, तो गलती मत करना। अभी इसी वे से मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 2 करके दिखाती हूँ। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में देखो बेटा 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और इसमें कैसे आपका इंटरप्रिटेशन पार्ट भी आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कौन सा हमें एक्सेप्ट करना है और कौन सा हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड एक्स का और वाई का। अभी एक्स का कैसे दिया है उसने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो उसका इनिशियल कितना है? 1 लाख, 2,50,000, then 3,50,000, then is 5,50,000, then is 7,50,000. Now you have to calculate the cumulative one. ठीक है, क्यूमुलेटिव कितना आ गया बेटा? फर्स्ट का तो आ गया 1 लाख, फिर कितना हो गया? 3,50,000, फिर कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख में 5,50,000 किया, कितना हो गया? 12,50,000। 1,000. Then 12,50,000 plus 7,50,000 is equal to 20 लाख। ओके, कितना इन्वेस्टमेंट दिया है आपको? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बेटा? देखो प्रपोजल एक्स में 15 लाख दिया है, Yes, ma'am. तो ये कहाँ पे लाई करेगा? 4th एंड 5th में लाई करेगा ना, 4th और 5th में। Yes, ma'am. ठीक है, तो 4th में आ गया, तो कितना अभी रह गया? देखो 12,50,000 आपने रिकवर कर लिया, 15 लाख का, तो कितना रह गया? 2,50,000 रह गया बेटा, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय 7,50,000। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? अभी देखो बेटा, जैसे हमने x का निकाला वैसे ही हमने y का निकाला। x का आ गया पेबैक पीरियड हमारा 4.33, y का आया 2.41। अभी हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? वेट, This one. ओमकार यू टेल मी, ओमकार टेल मी, Yes, ma'am. विच वन विल एक्सेप्ट, x या y? कौन सा एक्सेप्ट करेंगे बेटा? Ma'am, why? यस, वी विल एक्सेप्ट द Yes, ma'am. ओके। अभी अब करेंगे दूसरा बेटा, अब हमारा आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके वेट, now we will calculate the, sorry, net present value, net present value, net present value कैलकुलेट करेंगे x की 1, 2, 3, 4 and 5, 1 lakh, 2,50,000, 3,50,000, 5,50,000 and 7,50,000. Okay, now what is the present value? At the rate 10%, 10% पे लेना है बेटा, वो वैल्यू हमें पता है, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी। पहले की कितनी आ रही है? 90,900, पता है ना बेटा, या पीवी फैक्टर भी लिखूं मैं? बोलो, टेल मी। बेटा पीवी फैक्टर तो पता है, या पीवी फैक्टर भी लिखना है? बोलो।
पता है। ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। अभी यहाँ पे कितना आ गया, 2,06,500। 500 यहाँ पे कितना है, 2,62,850। ठीक है, और बेटा इसमें थर्ड वन है 3,75,650। लास्ट इज 465,750। अभी क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना इन सब का ऐड करके आ रहा है, कितना आ रहा है, 14,1650। ठीक है, माइनस कितना है बेटा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 15 लाख। 15 लाख। ये आ रहा है नेगेटिव में, 98,000 नेगेटिव में। अभी आप मुझे बताओ, एक्स का आ रहा है वैल्यू -98,350, वाई का आ रहा है बेटा 7,55,800। तो अभी हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, टेल मी, कौन सा वाई। accept? Y. Y. वाई, यस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी हमें ऐसे ही करना है। एक्स का कैसे है, कितनी वैल्यू आई थी, 14,01,650 डिवाइडेड बाय 15 लाख। ठीक है ना, वाई Yes, का ma'am. कितना है, 22,55,800 डिवाइडेड बाय 15 लाख। 15 दोनों लाख। की वैल्यू आएगी, देखो एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा 0.934, ठीक है, और वाई की आ रही है 1.50। तो अभी हम कौन सा लेंगे, वाई को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में बेटा जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी प्रॉफिट किस में शो हुआ हमें, प्रपोजल वाई में। अभी अगर आप देखो, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें उसने क्या किया, 2 पीवी फैक्टर कैलकुलेट किए हैं खुद से। एक उसने क्या किया कि ठीक है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% पे कैलकुलेट कर ली। एक उसने क्या किया, दूसरे का उसने क्या किया, प्रपोजल वाई पे, जस्ट अ वेट आई शो यू विद दिस। एक्स का दिखाती हूँ बेटा सबसे पहले। ठीक है, एक्स 1 2 3 4 5, 1,00,000, 2,50,000, 3,50,000। ठीक है, तो इसका पीवी फैक्टर उसने निकाला है 5% पे। अजम्पशन पे चलते हैं ये लोग, इसका आ गया 0.95, इसका आ गया 0.907, देन इज 0.864। ठीक है, इस तरह आया। फिर हमने क्या किया, सेम इसको बेटा जो इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई किया पीवी फैक्टर से। ठीक है, पीवी Yes. फैक्टर से इनफ्लो को मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगी आपकी कैश इनफ्लो की वैल्यू। ठीक है, सबकी वैल्यू उसने निकाल ली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अभी इसमें क्या दिया है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं 5% है एट द 5% डिस्काउंट, तो क्या आ रही है टोटल वैल्यू आपकी 16,65,000। ठीक है, जो कि 15 लाख से ज्यादा है। ठीक है, ओके। अभी फिर Yes, उसने ma'am. सेम किया फॉर कंप्यूटिंग आईआरआर। उसने क्या किया, लोअर रेट आपका कितना है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, लोअर रेट। लोअर रेट इसमें उसने क्या लिया है, 5%। ठीक है, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट कितनी आई थी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की ना 16,65,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कितना है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यूज में, 15 lakh. हाँ 14 लाख, और इसमें बेटा डिफरेंस लिया है उसने, बिकॉज इसने कैलकुलेशन किस पे की है, 16,65,000 पे। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हमने एक 5% पे लिया, पीछे 10% पे कैलकुलेशंस की हुई है ना हमने, तो उसने क्या बोला, लोअर रेट ले लो आप 5। उसने अज्यूम किया कि आईआरआर 5 और 10% के बीच में। अगर आप पीछे देखोगे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू 10% पे जो आ रही थी वो हमारी कितनी आ रही थी, एक्स में,
उसकी कितनी आ रही थी प्रेजेंट वैल्यू बेटा? 10% पे आ रही थी ना, 14,1650। ठीक है, इसका और 1,60,60 इसका डिफरेंस लिया बेटा उसने। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसके डिफरेंस से करना है, जो आ रहा है 263350। ठीक है, इनटू 5%। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये IRR मेथड है। ठीक है, सेम वे से दोनों का कैलकुलेशन कर लिया है। नाउ आई डोंट थिंक सो मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था। थर्ड क्वेश्चन नहीं है ना बेटा आपके पास? थर्ड क्वेश्चन है या नहीं है बेटा? Hey, ma'am. मैम सिर्फ क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, वो वाला नहीं है, रहने दो। अभी मैंने आपको जो बताया आज वो सिंपल है बेटा। जितने भी मैंने कैलकुलेशंस करके दिए हैं आपको अभी तक, उसमें से सिंपल है, जितना थ्योरी का एस्पेक्ट है वो, एंड प्लस दिस वन, the numericals which I have solved for you. You will revise this unit. Okay, by this our fourth unit is being completed. Now we are left with the fifth unit only. So in fifth unit I'll complete that unit also in my next 3 to 4 lectures, although it's a bit lengthy chapter, but I'll still try so that we can complete one way. लाइक एक दिन में रेशियोज कंप्लीट करके दूंगी, एक दिन में आपको मैं कैश फ्लो, एंड एक दिन में फंड फ्लो, एंड एक दिन में जर्नल। तो 3 या 4 दिन में मैं वो यूनिट आपका कंप्लीट कर दूंगी, सो दैट यू हैव एन एम्पल टाइम विद यू। असाइनमेंट्स आर बीइंग गिवन टू यू। आई होप यू हैव गॉट दैट असाइनमेंट्स विद यू। ओके, विच असाइनमेंट? मैंने असाइनमेंट बेटा सर के साथ शेयर की थी। सर ने भी शेयर नहीं की क्या आपके साथ? नो No, मैम। ma'am. No. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सर को एक मैसेज कर देती हूँ बेटा, सर दे देंगे आपको। ठीक है, मे बी उन्होंने Okay, थोड़े ma'am. टाइम के बाद देनी होगी इसलिए नहीं दी होंगी, बट ठीक है, अभी 4 यूनिट्स हो गए, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट ओनली। ठीक है, तो मैं सर को बोल दूंगी, वो आपको दे देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो, आज हमने सारे के सारे ये फॉर्मूलाज अभी मैंने करवा दिए हैं आपको। एक सेकेंड, जस्ट ठीक है। अभी कैपिटल बजटिंग का मेन आपको मैं बता रही हूँ, जो आप लोगों को करना है। जितने भी फॉर्मूला करवाए हैं मैंने, उनका इंटरप्रिटेशन आपको लर्न होना चाहिए, वेरी क्लियर। इसमें बेटा 3 फॉर्मूलाज हैं, बट मैंने करवाए 4 हैं। सिर्फ इसमें एक मेंशन नहीं है चार्ट में, ऑल्दो थ्योरी में भी मैंने वो आपको दिया है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन जो आता है आपको, मोस्टली आपको क्वेश्चन आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे, पे बैक पीरियड पे और डिस्काउंटेड पे बैक पे। IRR पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल I have taken one numerical so that you understand like how they have calculated it. Okay. Normally Okay, the ma'am. question हाँ, normally बेटा क्वेश्चन आपको इसी पे आता है। And one thing I'm again and again repeating, because interpretation बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर आपके लिए, क्योंकि आपको भी नेक्स्ट टाइम में बेटा यही आने वाला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत रेयर रहेगा कि वो आपको देंगे, सिंपल रहा तो देंगे, बट बेटर है यू गो एंड क्रैम विद दिस इंटरप्रिटेशंस। लाइक 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा। सो दैट इज व्हाई in this theory also, if you can see, I have given you like when we accept the project and when we reject the project. Okay, and this we have already completed with our 4th unit. Okay, so you are left with the 5th unit. I'll just brief you like what exactly is your 5th unit. In 5th unit, the normally the numericals which are being asked, ठीक है, जो बेटा 5th यूनिट आपका रहेगा, उसमें मेन जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आपको जो अभी आने वाला है, ऑल्दो कैश फ्लो फंड फ्लो मैं आपको सिखा दूंगी, उस पे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। हाँ, पूछ सकते हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिकॉज द थिंग इज यू मे बी आस्क्ड एनीथिंग रिगार्डिंग द फॉर्मेट। ठीक है, कैश फ्लो और फंड फ्लो का बेटा फॉर्मेट रहता है, तो आपको न्यूमेरिकल उस पे आ सकता है कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें ये चीज आती है नहीं आती है। बट मेन क्वेश्चन आपको जो आएंगे वो रेशियोज में से आएंगे, एंड रेशियोज दे आर, आई मीन यू कैन से कि इतनी सारी रेशियोज हैं कि उनको करने के लिए आपको टाइम जाएगा। ठीक है,
I'll try one thing कि मैं जब आपको रेशियोज कराऊं वो चार्ट आपको शो करूं, उसके साथ ही मैं आपको बेटा ये सारे दे दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. क्वेश्चंस भी सारे दे दूंगी, और एक है मेरा फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, वो भी मैं आप ही को दे दूंगी हर क्वेश्चन. आई प्रिपेयर वन पीडीएफ okay in this week, and then whenever my lecture will be there, when I start with that, I'll share the whole PDF with you so that you have those questions with you. I hope whatsoever numerical are being done by you, जो मैंने आपको करवाए थे बेटा उतने तो आपने करके लिए होंगे अभी तक, Yes, ma'am. ठीक है? अभी बिकॉज आपके एग्जाम्स के टाइम आ गया है, एग्जाम फॉर्म ये वो सब आ गया है, सो द थिंग्स आर बीइंग बिट फास्टर, so try to increase your pace so that we can complete with this thing, okay? The Ma'am, one question, more thing. yeah, sure, tell me. Ma'am, please share the PDF for all the 4 units. I've already shared with sir. Ma'am, we haven't received anything. No, ma'am, sir. No receipt. Okay, fine, I'll do one thing, I'll have a word with sir tomorrow. I'll ask him once again, okay? मैं दोबारा सारा दे देती हूँ, मे बी शायद एक दो मेल थी तो सर ने ध्यान नहीं दिया होगा, मे बी इट विल बी अ मिस. I'll again do one thing, मैं सारा का सारा सर को मटेरियल फिर से भेज देती हूँ along with your assignments, okay? Okay, ma'am. हाँ, मैंने कर दिया था, बट मे बी कई बार होता है, मिस हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा कर देती हूँ बेटा सेंड सर को, मैम ठीक है? हाँ बेटा, 5th चैप्टर के रेशियो के फॉर्मूलाज भी पीडीएफ कर दो मैम. बेटा अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, शुरू करने दो, फिर मैं पीडीएफ आपको शेयर करती हूँ, उसका पीडीएफ मुझे करना पड़ेगा, बट Yes, ma'am. हाँ तो बहुत मेरे सारे को, फॉर्मूलेज होते हैं ना आपको दे तो. हाँ वो मैं बेटा पूरा जब करवाऊंगी ना तब भी दे दूंगी. एक्चुअली मुझे भी 3-4 डेज के लिए थोड़ा मेरा पैक्ड है टाइम. वंस आई स्टार्ट विद दैट ना, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा पीडीएफ दूंगी, Okay, Okay. ma'am. ठीक है? हाँ मैं वो पूरा पीडीएफ दूंगी, बट ये जो 4 यूनिट्स हुए हैं इनके पीडीएफ मैं आपको दे चुकी हूँ पूरे, बट स्टिल आई अगेन मेल इट टू सर सो दैट यू विल रिसीव ऑल दैट, ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, okay, great. Okay, then bye. We'll meet in next lecture. Maybe this Sunday I will not take any lecture. I'll take my next lecture in next week only. I have some work with me, so I'll take that lecture. So next month 3 lectures में बेटा भी आपका वो मैं unit complete कर, ठीक Okay, है? Okay, ma'am. ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, you. ma'am. Okay, Thank you. bye. Okay, bye.